हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज डेट ऑफ पार्टनर का पार्ट 2 है। इससे पहले डेट ऑफ पार्टनर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने, राइट है। आज मैं बता रहा हूँ कि डेट ऑफ पार्टनर में हम एंट्री पास कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट पार्टनर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट की एंट्री, ठीक है ना, बस। और करीब करीब सेम है बेटा, सारे सेम है। बस हाँ, डेट ऑफ पार्टनर्स में जो भी बैलेंस आता है वो एग्जीक्यूटिव अकाउंट के में ट्रांसफ़र करते हैं, और रिटायरमेंट पार्टनर में जो भी बैलेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, लोन अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है बेटा। चलो आज मैं एंट्री बताता हूँ। जनरल एंट्रीज इन केस ऑफ डेट ऑफ पार्टनर, जनरल एंट्रीज एंट्रीज ये पार्ट 2 है बेटा, ये पार्ट 2 है, डेट ऑफ पार्टनर का पार्ट 2 है। जनरल एंट्रीज इन द केस ऑफ in the case of death of a partner, death of a partner, ठीक है बेटा। for general reserve transfer, for general reserve, for general reserve transferred for general reserve transfer, general reserve account DR, general reserve account DR to debt partners capital account, that partners capital account from his share, उसके शेयर से हम दिखाएंगे, पूरे अमाउंट नहीं दिखाएंगे। his share being share of general reserve, share of general reserve transferred being share of general reserve transferred in his capital account, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। दूसरी एंट्री, for accumulated profit, transferred for accumulated profit transfer, ठीक है बेटा।
एग्रीमेंटेड प्रॉफिट का मतलब जो पहले से जमा है, मतलब डेथ पार्टनर्स जो बना उससे पहले से जो जमा है, एंट्री वही होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट पार्टनर डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम ही शेयर, अपने शेयर से, फ्रॉम ही शेयर, उसके शेयर में जितना है वो लेके चलेंगे, शेयर बीइंग शेयर ऑफ being share of accumulated profit transfer to his capital account, transfer to their partner's capital account, that partner's capital account, in case of accumulated loss. Accumulated loss, that partners capital account DR, that partners capital account DR to profit and loss account from this year, from his share, यहाँ his का मतलब his share का मतलब होता है डेथ पार्टनर्स का शेयर, being accumulated loss transferred debt partners capital account, that partners capital account, for interest on capital, फोर्थ है for interest on capital, interest on capital, interest on capital account DR, interest on capital account DR to their partners capital account, their partners capital account,
being interest on capital, transferred with partners capital account, partners capital account, for interest on drawing, interest on drawing, that partners capital account due to interest on drawing, that partners capital account दिया, that partners capital account दिया to interest on drawing, being interest on drawing, transferred to their partners capital account, transferred their partners capital account, that partners capital account, for treatment of goodwill, बेटा, for treatment of goodwill, for treatment of goodwill, remaining partners capital account, रिमेनिंग मतलब जो बच गया, मतलब डेट को पार्टनर्स को हटा करके है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिया टू डेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट पार्टनर्स capital account, being goodwill amount credited to debt partners capital account, to debt partners capital account, debt partners capital account, created debt partners capital account, debt partners capital account, for during period profit, for periodic profit,
प्रॉफिट पीरियोडिक पीरियोडिक प्रॉफिट। ठीक है बेटा। फॉर पीरियोडिक प्रॉफिट का मतलब बताया जितने मंथ या जितने दिन आप बिजनेस में रहा है उस ईयर में, जिस ईयर में आप एक्सपायर किया है, उस 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, 4 महीने रहे, पहले वाले प्रॉफिट की बात नहीं बता रहा हूँ। उस पीरियड में सपोज कि आपने 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और 30 जून को एक्सपायर कर गया, तो ये आपने कितने महीने रहा, 3 मंथ रहे, तो उस 3 मंथ्स प्रॉफिट की बात हो रही है। मतलब अभी अकाउंट तो क्लोज नहीं किया ना, ठीक है ना। तो जब हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। ठीक है बेटा। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट DR टू डेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा। being periodic profit transfer debt partners capital account, debt partners कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है बेटा। अब जितने भी बैलेंस है, पूरे बैलेंस को डेट पार्टनर्स के कैपिटल में जितने भी बैलेंस है और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट दिया है, ऐसा क्यों, क्वेश्चन दिस, इसलिए क्या तो वो एक्सपायर कर गया, अब तो वो भगवान के प्यारे हो गए, राइट है, तो ऊपर से लेने के लिए तो आएगा नहीं। तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, वाइफ हो, जो कुछ भी उत्तराधिकारी होगा ना, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और हमें क्वेश्चन में पता तो है नहीं कि उसका उत्तराधिकारी कौन है, कि मम्मी है, पापा है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, नहीं पता। तो इसलिए हम आराम से उसके जो टोटल बैलेंस होता है डेट पार्टनर्स में, उसके क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि उसके जो भी उत्तराधिकारी है उसको दिया जाए। क्लियर है बेटा। तो देखिए, तो टोटल बैलेंस ऑफ डेट पार्टनर्स कैपिटल, टोटल बैलेंस, ये एंट्रीज 8 हो गया। टोटल बैलेंस ऑफ डेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, टोटल बैलेंस ऑफ डेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट पार्टनर्स capital account transferred using debt partners capital account, debt partners capital account, debt partners capital account DR to debt partners executed account, to debt partners executed account, debt partners executed account बेटा है, एग्जीक्यूटिव में तो उसका जो उत्तराधिकारी है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, executor account, being total balance of debt partners capital account, debt partners capital account
ट्रांसफर ट्रांसफर्ड ट्रांसफर इज एग्जीक्यूटर अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब यदि इसको कुछ पेमेंट करना है, सपोज इसको कुछ पेमेंट करना है, ठीक है बेटा, तो अब वो तो भगवान के प्यारे हो गए ना, तो उसको तो नहीं दूंगा, ऊपर से थोड़ा आगे लेने के लिए या ऊपर जाकर थोड़ा दूंगा, तो उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे। इफ सम अमाउंट पेड, इफ सम अमाउंट पेड, इफ सम अमाउंट पेड, यदि पे करता हूं तो क्या लिखूंगा, डेट पार्टनर से एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेट पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट DR टू कैश या बैंक, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, being some amount paid to executor account, paid to that executor account, एग्जीक्यूटर अकाउंट। बेटा ये नॉर्मल एंट्री है, करीब सारे एंट्री मैंने दिखा दिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बार लेजर बना करके ये बताऊंगा कि उसको किस साइड में कितना अमाउंट लिखेंगे, ठीक है बेटा।